Assalamualaikum guys, it's Homa Iqbal and today I'm going to give lecture on integration of technology in education, yani ki educational technology. First of all, we all have to know that what is educational technology. Educational technology includes whatever improves our teaching and learning process. Chalk, gesture, these all are the technology. Books, जब ये digital technology नहीं आई थी, these all were included in the technology. But this is digital technology. What we say, internet and interactive videos, projectors, these are digital technology. Uh, Bill Gates quoted that technology must be implemented as part of a thoughtful, holistic approach to education transformation that includes teacher training, relevant curricula, parental involvement, and programs for children that fill unmet needs for basic like nutrition, healthcare. Means कि technology basically चिल्ड्रंस की उन नीड्स को मैट करती है, जैसे कि उनके लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर ज़रूरी है। उसी तरह आजकल के दौर में बिकॉज दे आर डिजिटल नेटिव्स, टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़रूरी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स input and output process aspects of education. It stresses upon developing methods and techniques for effective learning. It is an application of scientific knowledge to education and training. Educational technology includes the organization of learning conditions. It emphasizes designing and measuring instruments for testing learning outcomes. It facilitates learning by controlling of environment, media, and methods. Now, what is technology all about? Technology is about creating instructional environments that can facilitate active engagement, meet the specific and varying learning needs of the students, facilitate collaborative problem solving, providing students with authentic learning environments. Means technology basically help us to provide a collaborative environment to our students. The integration of technology. What is technology integration or use of technology? What is the basic difference between technology integration and use of technology? Technology integration जब हम बात करते हैं तो we say that to integrate technology means an interactive environment of the use of technology. यानी कि अगर मैं use कर रही हूँ, that means I'm using projectors, I'm using multimedia. It facilitates only the teacher. But when we talk about the integration of technology, it facilitates the teacher as well as the learner. What is technology integration? Effective technology integration is attained when technology use is routine and transparent, accessible and readily available, supporting curricular goals. The main thing is this, कि it must be supporting the curricular goals and helping students learn. ये सबसे main चीज़ है कि students learn करना ज़रूर सीखें और दूसरी चीज़ कि वो आपकी support करे आपके curricular goals को. Now technology integration models क्या है? TPAC and SUMMER, दो मॉडल्स हैं जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वैसे दो और भी हैं बट TPAC एंड समर विल बी डिस्कस टुडे। TPAC क्या है? टेक्नोलॉजिकल, पैडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। व्हाई TPAC? व्हाट इज TPAC? व्हाट आर द अंडरलाइंग आइडियाज ऑफ TPAC? TPAC के अंडरलाइंग आइडियाज क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल, पैडागोजिकल, कंटेंट नॉलेज। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये बनाती हैं TPAC, यानी कि अ टीचर मस्ट नो हाउ टू यूज कंटेंट नॉलेज, technological knowledge, pedagogical knowledge and content knowledge. ये तीनों चीज़ें मिला के collaborative environment provide करती हैं. Like teacher must know how to use technology, how to teach and what to teach. ये तीन चीज़ें अगर teachers को पता होंगी तो एक proper collaborative environment teacher students को दे सकते हैं. अब ईच डायमेंशन क्या है? सी के, पी सी, टी के, ये सब आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि सी के मीन्स कंटेंट नॉलेज. इट रिफर्स टू द टर्म कंटेंट नॉलेज, यानी कि टीचर को अगर कंटेंट का नॉलेज है, पता है उसको क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द टॉपिक, उसके ऊपर ग्रेस्प है तो ही कैन टीच. पेडागोजिकल नॉलेज यानी कि टीचर मस्ट बी नोन के हाउ टू टीच, कि क्लासरूम मेथड्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज व्हाट टू बी फॉलोड, ये सारी चीज़ें पेडागोजिकल नॉलेज में आ जाती हैं. टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज हाउ टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी. इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल नहीं होगा, TPAC जो है वो फेल हो जाएगा यहाँ पे. अब इसके फोर्थ डायमेंशन क्या है? पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी कि इंटरेक्शन है पेडागोजी और कंटेंट नॉलेज का.
इसके बाद टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज यानी टेक्नोलॉजी और कंटेंट नॉलेज का इंटरसेक्शन है ये। और नंबर 6 डायमेंशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, यानी कि ये टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी और हाउ टू टीच is included in this dimension. All together they become TPAC. जैसे कि मैंने आपसे बात की कि दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ TCK यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ TCK मींस टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ TPK यानी कि टेक्नोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल नॉलेज. So all combines together to form TPAC. Now, true technology integration is understanding and negotiating the relationships between technology, pedagogy, and content. Teachers need to know not only the subject matter they teach, उनको सिर्फ content knowledge नहीं होनी चाहिए, subject matter नहीं, बल्कि but also the manner in which the subject matter can be changed with the application of technology. कि वो किस तरह से उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए प्रॉपर पेडागोजी को यूज करते हुए अपना लेक्चर डिलीवर करें. इन सब चीज़ों में इक्विलिब्रियम होगा तभी आप एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसके बाद आ जाते हैं समर मॉडल पे. द सेकंड वन इज समर मॉडल. समर मॉडल बेसिकली वर्क्स एज लैडर. ये 4 स्टेप्स में काम करता है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स: substitution, augmentation, modification, and redefinition. The first two steps are known as enhancement stages, and the second two stages are known as transformation stages. इन दो स्टेजेस में जो आपका एक्टिविटी या टास्क है उसमें एनहेंसमेंट होती है, एंड दीज टू स्टेप्स में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. काम रीडिज़ाइन हो जाता है, रीमॉडिफाई हो जाता है. तो देखते हैं इसमें क्या है. सब्स्टिट्यूशन लेवल. एट दिस लेवल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड to perform the same task as was done before the use of technology. यानी यहाँ पर जो काम पहले हो रहा था, लाइक अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूँ कि क्रिएटिव राइटिंग की, कि पेपर और पेंसिल से हम जो क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को कराते थे, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन स्टेज पर उनको बोलूँ तो मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उनको कहूँगी कि जस्ट आई नीड इट इन अ टाइप फॉर्म. Augmentation level. In this level, मैं उनको कहूँगी technology acts as a different tool with a functional change. Task is not changed, but use of features of technology are incorporated. यानी कि इस स्टेज पे टास्क वही रहेगा, बट आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूज. यानी अब मैं उनको कहूँगी कि आप इन टाइप फॉर्म लेकर आए, इन साथ में आप इसको एम्बेड कर दें और शेयर कर दें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. नाउ मॉडिफिकेशन. एट दिस लेवल टास्क जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा उसकी रीडिजाइनिंग होगी, और पूरी मॉडिफिकेशन लेवल पे वो आ जाएगा. दैट मीन्स के लाइक अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग ही की बात करते हुए ऊपर चल रही हूँ, तो क्रिएटिव राइटिंग में मैं उनको ये कहूँगी अब कि आप इस स्टेज पे मुझे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में, लाइक गूगल डॉक्स पे एक सारे बच्चे मिल के एक साथ एक कोलैबोरेटिव स्टोरी राइट करके दिखाएं. The last stage is redefinition, which is the last stage. in इसमें जो है वो टास्क पूरा completely change होके redesign हो जाएगा, एंड एक नया टास्क निकल के आएगा जो कि completely use of technology होगा, और उसमें एक proper modification होगी with the use of technology. जैसे कि अगर मैं उसी की बात कर रही हूँ क्रिएटिव राइटिंग की, तो एट दिस स्टेज मैं बच्चों को कहूँगी कि नाउ मेक अ वीडियो ऑफ अ क्रिएटिव स्टोरी. एक स्टोरी ऐसी लिखें जिसमें आप लिखना आपको ना पड़े, आप जस्ट रिकॉर्ड करें उसको वीडियो में. और वो टास्क बेसिकली वही बच्चों को सिखाना है, क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, लेकिन टास्क मॉडिफाई होके वो इन वीडियो फॉर्म हो जाएगा. तो ये बेसिकली समर मॉडल है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इनहेंस करता है टेक्नोलॉजी की तरफ. एट द लास्ट ऑफ दिस सेल्फ बेस्ड लेसन मैंने आपको एक इसी तरह का असाइनमेंट भी दिया है, जिसमें आपको एक एक्टिविटी है आपको डिज़ाइन करनी होगी वो यूजिंग दिस समर मॉडल. इस क्रिएटिव राइटिंग वाले एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप अपनी एक एग्जाम्पल डिज़ाइन करेंगे. ऑलराइट. अच्छा, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी मैंने आपको इन दी एंड एक ओपनर एंडेड क्वेश्चन दिया है, एक वीडियो साथ शेयर है जिसमें आपने वीडियो देख के एनालाइज करना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आपने जो इस वीडियो में देखा. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल पे इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन नो दैट इट एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो इन्हेंस करता है. टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज एरा ऑफ डिजिटल नेटिव्स. बच्चे जो हैं आजकल के, इनको सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं पता, बल्कि उससे बहुत आगे की चीज़ें भी पता हैं, जो कि टीचर्स भी आजकल इतना ज़्यादा नहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते.
लेकिन obviously it provide collaborative environment. It provide great source for teachers to help students grasp concept easily. क्लासरूम में पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की इंटरेक्टिव बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है. पाकिस्तान में व्हाई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज नीडेड इन पाकिस्तान, क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स by gaining learner attention, engaging the learners through production work. ये वही सारी बातें कि increasing perceptions of control, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में बहुत शदीद ज़रूरत है. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ रेस इन टेक्नोलॉजी हम बहुत पीछे हैं. वी आर वेरी वेरी फार अवे. हमें बहुत मेहनत करनी है इस प्लेटफॉर्म पे इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए. So number 2, technology offers unique instruction capabilities such as linking learners को link करती है, help learners visualize problems and situations, learners की progress को track करती है, linking learners to learning tools की तरफ बच्चों को link करती है. Technology gives support for new instructional approaches such as cooperative learning, shared intelligence. आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हायर लेवल स्किल्स, ये सब चीज़ें इनहेंस प्रमोट करती हैं इन सब चीज़ों को. टेक्नोलॉजी स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एज. ये एज जो है ये इंफॉर्मेशन एज समझी जाती है. तो टेक्नोलॉजी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, विजुअल लिटरेसी, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इम्प्रूव हो सकती हैं. टेक्नोलॉजी इंक्रीज टीचर्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है. ऑब्वियसली उनको ज़्यादा से टाइम मिलता है, उनका काम आसान हो जाता है. अलाउइंग टीचर्स प्रोड्यूस बेटर लुकिंग मोर स्टूडेंट फ्रेंडली मटीरियल्स. आजकल बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे क्लास जो है, एडमोडो है, एडपजल है. एडपजल क्या करता है, वो वीडियो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर उसकी बात करते हैं. like now ways to integrate technology, so many tools are there to make education fun learning. Zoom पे हम इस वक्त खुद ये सेशन डिज़ाइन किया हुआ है मैंने. क्लास डोजो है, आप क्लास जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, एक एलएमएस है. एडमोडो भी एक एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है पेरेंट्स और टीचर की कोलैबोरेशन के लिए. नेयरपॉड सेल्फ बेस्ड लेसन प्रोड्यूस करता है. कहूट जो है वो क्विज़ेस डिज़ाइन करने के लिए है. एडपजल जो है वो वीडियोस डिज़ाइन करता है, जिसमें आप एक इंटरैक्टिव वीडियो जिसके अंदर आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारा सेशन था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का. होपफुली आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ आया होगा. नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स. आप एक्टिविटी अपनी कंप्लीट करें, देन एनालाइज द वीडियो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, उसको आप उसकी वर्डिंग्स पर लिखें, एंड देन इस सेल्फ बेस्ड लेसन को कंप्लीट करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. अल्लाह हाफिज़.